Hello friends, welcome to Paralegal Study. In today's lecture, we will analyze our 7 unit that is governance, challenges and the changing role of bureaucracy. तो इसमें हम समझेंगे कि गवर्नेंस जो है उसके आगे चैलेंजेस क्या हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो ब्यूरोक्रेसी है मीन्स आईएएस, आईपीएस ऑफिसर एंड अदर गवर्नमेंट सर्वेंट, उनका क्या रोल है फॉर मेकिंग द और फॉर एक्सपेंडिंग द गुड गवर्नेंस। ये पूरा इस चैप्टर में हम एनालिसिस करेंगे। एंड फ्रेंड्स, इन आवर चैनल टू टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स मीन्स वन पर्टिकुलर group of students came from the South India and Northeast region. So these students comfortable in English language, and some other students came from the West or North region. They are comfortable in Hindi language. So I deliver my lecture in bilingual language means Hindi and English, so you can easily access according to your need. So friends, here first of all means what do you mean by governance? In simple way, if we analysis in a very simple definition, governance means opening of the arena of government in different sector, or we can say that the concept of governance means how modes and manners of the governing from the government. मतलब सिंपल सी वे में हम बात करें कि हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस इन ए बेटर वे, हाउ गवर्नमेंट परफॉर्म हिज ड्यूटी एंड इन विच मैनर, तो वो एक सिंपल सा मतलब है गवर्नेंस का। और इन सिंपल लैंग्वेज वी कैन से दैट गवर्नेंस मीन्स द स्ट्रक्चरल और प्रोसेसेस that are designed to ensure accountability, transparency, responsiveness, rule of law, stability, equality, empowerment and broad based participation. So here governance, आपने ये वर्ड अक्सर सुना हो गया न्यूज़ चैनल्स में भी कि गवर्नमेंट जो है वो क्या अब चाह रही है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपसे आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ एनी ऑफिसर और इफ़ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट he or she did not perform his duty, then according to the governance, we ensure the accountability and we ensure the transparency and we ensure the responsiveness of that particular officer, है ना। तो यहाँ पे गवर्नेंस का मतलब ही है कि एक स्ट्रक्चरल और प्रोसेस वे में रिफॉर्म, जिसके तहत जो सरकार है वो ज़्यादा अफेक्टिव तरीके से, ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी मतलब ओपन, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन ईजिली गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। एंड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इज आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, है ना। तो एंड गवर्नेंस मीन्स ऑल्सो मीन्स द रूल ऑफ लॉ, स्टेबिलिटी एंड इक्वलिटी। तो दीज all things related to the terms governance. So governance means the structural and the processes, or we can say that how government work in a proper manner is known as the governance. So here the concept of governance means origin. Genesis means the origin, how the concept of governance arise. So friends, if we analyze our ancient history, then the concept of governance was earlier discussed by the Aristotle or Kautilya in the Arthashastra. So Arthashastra is the first text, or we can say the Kautilya was the first philosopher who gave the concept of the governance. So in Arthashastra, Kautilya presented some key pillars of the art of governance, and he also emphasizes or focus on justice and the duty of king to protect not only the wealth but also the citizens also. सिंपल सी करें कि कौटिल्य जो थे हमारे बहुत ही फेमस फिलोसफर हुए हैं एंशियंट टाइम में,
तो कौटिल्य ने जो बुक लिखी है अर्थशास्त्र, वहाँ पे फर्स्ट टाइम हमें ये कॉन्सेप्ट दिखाई देता है गवर्नेंस का। और उस कॉन्सेप्ट में उन्होंने बता रखा है कि हाउ जो किंग है, मतलब व्हाट आर द वेरियस ड्यूटीज़ ऑफ द किंग एंड हाउ ही परफॉर्म और हाउ ही रूल द स्टेट, है ना। इसके अलावा वहाँ पे मिलिट्री एंड इकोनॉमी रिलेटेड, पॉलिटी रिलेटेड, जस्टिस रिलेटेड, ये बहुत सारी चीज़ें अर्थशास्त्र में उन्होंने इंक्लूड की हैं। तो ये सबसे पहले एंशियंट टाइम में हमने ओरिजिन देखा। बाद में हम चलें, द गवर्नमेंट एज एन इंस्ट्रूमेंट of the state has always as a sole provider, means if we analysis our history after the independence, then in the initial phase of our independence the government was the sole provider of the services of the goods and production. But after the LPG reforms in 1991, our government not only provides the essentials items, but along government also work, or you can say government also coordination with the private players. So now government somehow make the policy of the mixed economy, मीन्स अभी अगर हम देखें स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ही का काम था कि वो इकोनॉमी में सारी चीज़ें देखना, और वी कैन से सारे डिसीजन गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ज़्यादा था। बट बाद में एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद क्या हुआ, ये जो शिफ्ट है ये चेंज हुआ फ्रॉम द गवर्नमेंट बेस्ड जो मॉडल था उससे कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी में, मिक्स्ड डेवलपमेंट मॉडल में हम कन्वर्ट हुए, जहाँ पे जो कॉरपोरेट दुनिया है, जो बिजनेस हाउसेज हैं, उनको भी साथ लाया गया। सो ये एक सेकेंड फेज हमें दिखाई देता है। एंड नाउ आफ्टर द इंटरनेशनल, सम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस like UNDP, World Bank, and other various speeches, paper, and research, the concept of governance became more developing from with the passage of the time. And now all the democratic countries focused on the governance, means to ensure effective and accountable management, है ना। कि धीरे धीरे बाद में जैसे डब्ल्यू बैंक है, और ये आपका मीन्स वर्ल्ड बैंक है, इसके अलावा यूएन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स हैं, इन सभी ने भी किस चीज़ पे फोकस किया, इनका जो फोकस था वो था कि गवर्नेंस जो है उसको कैसे हम बेहतर बना सकते हैं। तो उसके लिए अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए अफेक्टिव तरीके से, फास्ट तरीके से चीज़ों को किया गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस को ईजी बनाया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब अगर हम गवर्नेंस का मीनिंग देखें सम थिंकर्स के अकॉर्डिंग, तो क्लीवलैंड ने उन्होंने बोला है, अकॉर्डिंग टू द क्लीवलैंड, द गवर्नेंस मीन्स व्हाट द पीपल वांट्स इज लेस गवर्नमेंट एंड द मोर गवर्नेंस। मीन्स ही पॉइंटेड आउट दैट if we want to achieve the goal of good governance, then we focused on the less government interference, and also our corporate world and our capitalist based model of the economy should be adopted by the government. तो उन्होंने यही कहा है कि गवर्नेंस तभी होगा जब स्टेट का इंटरफेरेंस कम होगा। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आप ओरिजिन के रूप में लिख सकते हैं कि एंशियंट टाइम में कैसे कौटिल्य और उनका पूरा कॉन्सेप्ट, बाद में इंडिपेंडेंट के बाद इंडिया ने अपना कैसे शिफ्ट किया पॉलिसी, और जो गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट, पहले इंटरफेरेंस स्टेट का ज़्यादा होता था, बट आफ्टर द एलपीजी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट जो है वो फ्रेंड बन के कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ वो काम कर रहा है फॉर डिलीवरिंग द सोशल जस्टिस एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। And various other organizations like World Bank, UNDP, and International Monetary Fund, IMF, all these organizations also focused on the governance all over the world. And according to the Cleveland, governance means what the people want, that is peoples all over the democratic country wants less government and more governance. तो ये पूरा हमने ओरिजिन और इसको एनालिसिस के रूप में हमने देखा। नेक्स्ट टॉपिक इज द गवर्नेंस कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। इन दिस टॉपिक मेनली कॉन्सेप्चुअल मीन्स वी कैन से द डेफिनेशन, और वी कैन से द टर्म्स गवर्नेंस हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स एज वेल। सो
Here, first of all, the government as an instrument of the state through the plans, policies and the programs attempt to deliver essential service to the citizen. कि गवर्नमेंट का जो काम है वो क्या है, एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, एक मशीनरी के रूप में फॉर डिलीवरिंग द बेटर सर्विस, फॉर मेकिंग द रूल्स, फॉर मेकिंग द रूल फॉर द पीपल, and also policies and programs to deliver the essential service to the citizen. So we can say that governance means the opening up of the arena of the government in multiple sector, है ना. अभी अगर हम फोकस करें कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो किस चीज़ पे है, तो अकाउंटेबिलिटी, पीपल्स पार्टिसिपेशन. आपने देखा होगा कि जो करंट गवर्नमेंट है वो भी बोलती है जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टार्टअप को लेके आइए. इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे जो मिनिस्टर्स हैं, खासकर पीएम हैं, वो कभी रिलीजियस एसोसिएशन से मिल रहे हैं, कभी वो किसी जो बिज़नेस ग्रुप से मिल रहे हैं, कभी सीईओ, टॉप जो सीईओ हैं वर्ल्ड में, कभी उनके साथ मीटिंग हो रही है. ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, ये कहीं ना कहीं ऑल दीज थिंग्स फोस्टर मीन्स इम्प्रूविंग द नेटवर्क amongst the several stakeholders and involving multiple actors in the development model. कि अभी जो डेवलपमेंट का जो मॉडल है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ जो सोशल और पॉलिटिकल और कल्चरल जो डेवलपमेंट की भी जो बात होती है, उसमें गवर्नमेंट नॉट जस्ट प्लेइंग इंडिविजुअल role, but government also participate with the business houses, government also participated with the civil societies, government also participated with the common people or people's participation also there. So अभी जो कॉन्सेप्ट है गवर्नेंस का वो हमें एक फ्रेंडली, एक कोलोब्रेशन के साथ हमें वो दिखाई देता है. फिर यहाँ पे अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द रोड्स पुट फॉरवर्ड the concept of governance means the minimal state or corporate governance, good governance and the new public management. तो रोड्स ने इन चीज़ों पे जोर दिया है. उन्होंने कहा है कि गवर्नेंस के कुछ पैरामीटर्स हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए गवर्नेंस के केस में. मीन्स गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होना चाहिए, गवर्नमेंट को कॉरपोरेट दुनिया बिजनेस के साथ कोलैबोरेशन करना चाहिए. इसके अलावा गुड गवर्नेंस मीन्स चीज़ें जहाँ पे एफिशिएंसी हो, इजीली लोगों को सुविधाएं प्राप्त हो जाएं, स्मूथ ट्रांजिशंस हो. ठीक है, मतलब पेपर वर्क ज़्यादा ना हो, क्योंकि आपने देखा है पहले, मुझे नहीं पता कि आपने वो चीज़ें कभी पढ़ी हैं या नहीं, बट पहले ऐसा होता था कि पेपर वर्क बहुत होता था. मीन्स ये जो ब्यूरोक्रेसी है कहीं ना कहीं ये काम में बहुत. अभी एक आपने ये भी तो ज़रूर देखा होगा कि पहले जैसे फॉर्म जो भरते थे, आजकल जो हम फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, वो आप देखो इजीली हमारा एडमिशन हो जाता है, इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन. बट पहले ऐसा नहीं था, पहले प्रॉपर पेपर वर्क करो, बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती थी, तो वो सब था. लेकिन अभी क्या है, आप देखो कितनी चीज़ें ईजी हो गई. इवन गवर्नमेंट भी कितना स्मूथली ट्रांजिशन, स्मूथली आप ऑनलाइन, चाहे आधार कार्ड हो, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका पासपोर्ट हो, आप इजीली वो सब चीज़ें करते हैं. क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस. और फिर बाद में जो इंटरनेट रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, प्राइवेट प्लेयर्स को साथ लाए गए, तो उसके बाद से ही ये चीज़ें हमें दिखाई देती हैं. नेक्स्ट है कि देयर आर वेरियस अदर इंटरप्रिटेशन ऑफ द गवर्नेंस ऑल्सो बाय द डिफरेंट स्कॉलर. तो कुछ अलग स्कॉलर्स ने भी कुछ टर्म्स हैं गवर्नेंस को लेके वो दी हैं, जैसे शिफ्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट स्टेट टू द होलो स्टेट. इसका मतलब क्या है कि जो गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो पहले स्टेट जो है वो इंटरफेयर करता था. स्टेट जो है पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता था कि खुद ही अपनी रूल्स रेगुलेशंस या खुद ही चीज़ों को, सभी चीज़ों को मैनेज करता था. बट नाउ द स्टेट बिकेम शिफ्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेट्स माइंडसेट टू द फ्रेंडली माइंडसेट, है ना. कि अब स्टेट जो है वो फ्रेंडली बन के साथ मिल के काम करता है, उसी को होलो स्टेट बोलते हैं. होलो स्टेट का मतलब भी है जहाँ पे स्टेट ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करता. सो एक तो ये है स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग. दूसरा, कुछ स्कॉलर्स ने ये कहा कि मार्केट बेस्ड अप्रोच टू द गवर्नमेंट, है ना, कि समहाउ जो मार्केट है, जो प्राइवेट प्लेयर हैं, वो गवर्नमेंट में बहुत उसका इन्वॉल्वमेंट होता है. डेवलपमेंट जो मॉडल है वो बेस्ड ऑन द सोशल कैपिटल, सिविल सोसाइटी, सिटीजन्स का पार्टिसिपेशन, ये सब देखने को हमें मिलता है. ठीक है ना. तो एक प्रॉपर एक नेटवर्क होता है जहाँ पे सारे लोग फंक्शनिंग करते हैं.
तो ये एक अदर इंटरप्रिटेशन हुई। सो ये जो सारी हमने चीज़ें देखी, जैसे रोड्स के कुछ प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नेंस जो उन्होंने बोले कि मिनिमल स्टेट, कॉरपोरेट गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, ठीक है ना। और इसके अलावा वेरियस स्कॉलर का हमने देखा कि शिफ्ट फ्रॉम द ब्यूरोक्रेसी टू द होलो स्टेट, मार्केट बेस्ड अप्रोच, है ना। और उससे पहले हमने देखा था कि गवर्नेंस का मतलब ही है कि एक कलेक्टिवली एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, कम्युनिटीज़ और अदर जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो एक साथ आके जहाँ पे वर्क करती हैं। तो ये पूरा हमारा गवर्नेंस का कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हमने देखा। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस, ठीक है। तो इसमें देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स के मैसेज मुझे मिलते हैं बीच में कि भाई आपके नोट्स जो हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं हमारे लिए, तो फ्रेंड्स ये सच बात है उसका, क्योंकि देखो इग्नू का जो मटेरियल है सम हाउ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, और ख़ासकर कुछ कोर्सेज़, जैसे कुछ कोर्सेज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे इजीली आपको वो चीज़ें बस आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएंगी, बट ये जैसे गवर्नेंस और ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो बहुत डीप स्टडी की मांग करते हैं। तो वो जो मतलब जिन भी स्टूडेंट्स के जो मैसेज आए हैं, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव एंड फॉर योर ट्रस्ट ऑल्सो। और दूसरी चीज़ ये है कि हाँ ऑफ कोर्स जो नोट्स हैं, जैसे इस 7th यूनिट के भी जो हम पूरी चीज़ें एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसकी क्रीम नोट्स जो हैं वो आपको इस तरीके से फॉर्म में मिल जाती है। तो जिसको भी चाहिए वो मैसेज करके और इनको ओनली 10 रुपीज़ में एक्सेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इजीली जैसे पूरी यूनिट को मैक्सिमम 4 to 5 पेज में इसमें क्रीम नोट्स बिल्कुल कंक्लूड है। तो आप इस तरीके से आप इनको अगर नोट्स को और साथ में लेक्चर को अगर आप सुन के पढ़ते हैं तो आपकी तैयारी ज़बरदस्त हो जाएगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। सो बट थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मैसेज किए थे। तो क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस का क्या मतलब है यहाँ पे, द टर्म्स वही फिर से, द मीन्स क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस इज एसोसिएटेड विद द गुड गवर्नेंस, मीन्स the term good governance was initially proposed by the World Bank in the 1989, and the concept of good governance means the market reform, है ना। तो गवर्नमेंट जो गुड गवर्नेंस, जो क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस का मतलब ये, अगर आपसे वहाँ पे आंसर में कुछ ऐसा आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस, आप तुरंत उसको समझ जाएंगे कि क्वालिटी क्या होता है ना, अच्छी। जैसे मैंने कहा अभी, जैसे कई लोग जो मैसेज करते हैं कि आपके नोट्स में क्वालिटी है, एक अच्छा कंटेंट है, तो वो क्वालिटी ऑफ द गवर्नेंस भी ही क्या है एक्चुअल में, गुड गवर्नेंस। और ये जो कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड बैंक ने दिया था 1989 में, ठीक है ना। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वाज आइडेंटिफाइड ए स्ट्रक्चरल नेसेसिटी फॉर द मार्केट रिफॉर्म, and the term good governance should means the increased public accountability, transparency, and the strengthening of the others players also, rule of law, anti-corruption measures, and the decentralization, local government reform, increase the participation of the society। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं जो आपको हर हाल में अपने आंसर्स में मेंशन करनी है, ये टर्म्स आपने अगर मेंशन नहीं की तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है गुड गवर्नेंस से रिलेटेड जो आंसर्स है उसमें नंबर आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है कि गुड गवर्नेंस का मतलब ही है आपको ये सभी चीज़ें इंक्रीज़ करनी होगी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसीज एंड गवर्नमेंट रिफॉर्म, पीपल्स पार्टिसिपेशन, रिस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन राइट एंड द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस, ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट उसी में देखें कि गुड गवर्नेंस ऑल्सो हैज़ सर्टेन क्वालिटी, मीन्स कि गुड गवर्नेंस जो है उसमें कौन कौन सी और अदर क्वालिटीज़ हैं जो इससे एसोसिएट होती हैं। तो इट मीन्स द प्रमोट इक्वालिटी, प्रमोट द पीपल्स पार्टिसिपेशन, प्लूरलिज्म मीन्स जहाँ पे सभी लोगों को इक्वल अधिकार मिले, सभी लोग अपने अपने इंजॉय कर सकें अपनी एक तरीके से अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को, तो प्लूरलिज्म को प्रमोट करना, रूल ऑफ लॉ बेस्ड ऑर्डर हो, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये यही टर्म फिर से आ गए ना, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द लॉन्ग टर्म एंड द एरेडिक्शन और रिमूवल ऑफ द पॉवर्टी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो ये जो सारी टर्म्स हैं ये गुड गवर्नेंस है, और द कॉन्सेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द 21st सेंचुरी, एंड आवर गवर्नमेंट ऑल्सो फोकस्ड ऑन द गुड गवर्नेंस। जो हमेशा, जो अभी आप न्यूज़पेपर में मैक्सिमम इस वर्ड को आप देखते होंगे एडिटोरियल्स में, और इसीलिए ये जो टॉपिक है गुड गवर्नेंस का, या जो पूरा ये हमारा जो कोर्स है
ये इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये कल को आप जैसे बिहार स्टेट सर्विसेज या वेस्ट बंगाल स्टेट सर्विसेज, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, जो भी स्टेट सर्विसेज हैं, यूपीएससी हुआ, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर हाई स्टैंडर्ड्स एग्ज़ाम, उन सभी में ये जो कॉन्सेप्ट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर सब्जेक्ट में मतलब हर एग्ज़ाम में ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है इसकी रेलिवेंस है ना। तो यही है कि कैसे वर्ल्ड बैंक के 1989 के बाद जो ये गुड गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट है ये पूरा आगे बढ़ा और इसमें किस तरीके से क्वालिटीज़ के जो अदर डायमेंशंस है वो हमने देखे। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ द गवर्नेंस, कि अभी हम रिसेंट में देखें तो सम ऑफ द वेरियस चैलेंजेस वी फेस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नेंस। जैसे उसमें सबसे पहले की चैलेंजेस क्या हैं? इंफॉर्मेशन गैप, मतलब आज भी आप देखेंगे कि कई जगह ऐसा है कि लोगों को अपने अधिकार नहीं पता, पीपल्स आर नॉट अवेयर अबाउट देयर राइट्स। तो वो कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन गैप है वो एक चैलेंज है। अगर उसको हमने रिमूव कर दिया तो गवर्नेंस और ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा। दूसरा चैलेंज है कैपेसिटी गैप। इसका मतलब है कि हमारे पास स्किल नहीं है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ही ले लो, मान लो इग्नू से रिलेटेड जो आप यूट्यूब पे भी अगर सर्च करेंगे तो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट के रूप में बिल्कुल ऑथेंटिक टू द पॉइंट और बिल्कुल क्लियर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको बहुत रेयरली ही मिलेगी। ठीक है, ज़्यादातर लोग असाइनमेंट, फालतू का जो कचरा है, इसके अलावा इग्नू में कब क्या भी एडमिशन हो रहा है, ये सब चीज़ें ज़्यादा लोग शेयर करते हैं। क्यों? क्योंकि आप लेक्चर तभी डिलीवर करेंगे ना जब आपको नॉलेज होगी, जब आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी, है ना। तो इन द सेम वे मतलब यहाँ पे बात वही है कि कैपेसिटी गैप है, कहीं ना कहीं स्किल नहीं है हमारे पास। सो वो गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट के आगे जो एक बड़ा चैलेंज हमें देखने को मिलता है वो एक तो मैंने बोला कि लोग अवेयर ही नहीं है। ठीक है, तो वो जो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन गैप और दूसरा कैपेसिटी गैप, इन स्किल्स नहीं है हमारे पास, ह्यूमन तो हैं। देखो फ्रेंड्स, एक मेजर इंडिया में आप मान के चलो, पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ जनसंख्या इतनी ज़्यादा है, ये बात सही है, लेकिन अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हर साल कितने लोग ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन क्या सच में उन लोगों से आप जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो पास हो गए, उनसे आप पूछो वो कभी कि 9th 10th 12th इन सब के बच्चों को पढ़ा पाएंगे? और पढ़ाना तो दूर की बात है, उनसे बेसिक भी चीज़ें पूछोगे तो उनको नहीं पता। तो कहने का मतलब हमारे यहाँ पे जो ये कैपेसिटी जो गैप है ना, जो स्किल बेस्ड जो गैप है, ये बहुत ज़्यादा है ना। तो पीपल्स जो है जनरली हमारे यहाँ पे ना लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, ना यहाँ पे लोगों को अच्छे से जो सब्जेक्ट वो पढ़ते हैं, जैसे ऑनर्स अगर कोई पढ़ रहा है, कोई बीए प्रोग्राम पढ़ रहा है, तो उसको अपनी सब्जेक्ट की भी गहरी उसमें मतलब क्या कह सकते हो, आपकी नॉलेज वो गेन नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ बस ये है कि जस्ट पास हुआ जाए, धक्का पेल हो गया और आगे बढ़ा जाए। लेकिन इससे याद रखना, आपकी रोजी रोटी तो ज़रूर चल जाएगी, लेकिन आप लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे अचीव, है ना। वो तभी आप अचीव कर पाएंगे जब आपके पास स्किल होगी, आप कैपेसिटी जो गैप है, जो स्किल बेस्ड जो नॉलेज है, उसको आप गेन करेंगे, है ना। तो वो अगर कम होगा, और वो बड़ा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में यहाँ पे, इसीलिए हमारे यहाँ पर गवर्नेंस के आगे सबसे बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट चैलेंज इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, मीन्स पूरा हमारे पास अभी भी उतने रिसोर्सेज और इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है। नेक्स्ट है फिस्कल गैप, मीन्स समहाउ जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा इतना सरकार के पास नहीं है कि वो इन चीज़ों पे पैसे इन्वेस्ट कर सके, है ना। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव गैप, इसमें क्या होता है, इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉर्डर्स डू नॉट कॉरस्पॉन्डिंग टू फंक्शंस इकोनॉमिक एरियाज़, कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं जैसे ऑफिसर्स वर्क, तो उनको और बहुत सारे वर्क ऐसे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको वो बहुत रूट लेवल तक वो डिलीवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो और सेम एडमिनिस्ट्रेशन में भी आपने देखा होगा कि जो यंग अभी जैसे पढ़े लिखे बहुत ही टैलेंटेड जो लोग आ रहे हैं आगे, ठीक है, जॉब्स में, तो वही रिफॉर्म कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पैसे दे के भर्ती हो गया और अदर रूप में जो घपले होते थे, तो वो सब चीज़ें जो है ना कहीं जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो गैप है, मीन्स अगर जो जॉब में तो हैं लेकिन उनके पास नॉलेज ही नहीं है, तो वो भी गवर्नेंस के आगे चैलेंज है। नेक्स्ट है पॉलिसी गैप। पॉलिसी गैप का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल रिजल्ट व्हेन मिनिस्टर्स टेक प्योरली वर्टिकल अप्रोच। जैसे हमने देखा था ये कि अगर गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को हमें इम्प्रूव करना है तो वी शुड फोकस ऑन द हॉरिजेंटल अप्रोच, हमें हॉरिजेंटल अप्रोच पे ध्यान देना होगा।
अगर हम वर्टिकल अप्रोच पे ध्यान देंगे तो इसका मतलब कि एक हायरार्की हो जाएगी कि भाई मैं टॉप पे, तुम मेरे नीचे, वो उससे नीचे। तो ऐसे हायरार्की में नहीं, कहीं ना कहीं हमें हॉरिजेंटली सभी को साथ लेके चलना होगा, तभी गवर्नेंस का जो गुड गवर्नेंस का जो हमारा विजन है हम उसको अचीव कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस चैलेंजेस ऑफ द गवर्नेंस। फिर नेक्स्ट अगर हम टॉपिक देखें, जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट है चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो इसमें क्या है कि अफेक्टिव एंड ऑनेस्ट ब्यूरोक्रेसी ऑलवेज द बैकबोन ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम, and bureaucracy plays an important role in the social economic development as the nation buildings also. And the role of bureaucracy is the it's very positive impact in our society because the bureaucracy attached with the common people, है ना। तो कहीं ना कहीं हम बात करें कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो बैकबोन है, क्योंकि लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट सिर्फ कानून बना सकती है, बट द एग्जीक्यूटिव आर दोज हु इम्प्लीमेंट द लॉ एट द ग्राउंड लेवल। तो वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कनेक्ट होते हैं कॉमन पीपल से। तो ब्यूरोक्रेसी हमेशा से बैकबोन रही है। किसी भी कंट्री में ब्यूरोक्रेसी जितनी अच्छी होगी, जितनी एफिशिएंट होगी, जितनी ब्यूरोक्रेसी ऑनेस्ट होगी, उतना वो देश डेवलप करेगा। दूसरी तरफ ठीक उल्टा, इफ ब्यूरोक्रेसी इंगेज्ड इन द करप्शन, ब्यूरोक्रेसी इंगेज्ड इन द अदर रॉन्ग एक्टिविटीज़, है ना, और एक हायरार्कियल मॉडल अगर वो फॉलो करेंगे कि भाई मैं ऑफिसर, ये तो कॉमन पीपल हैं, इस तरीके की अगर अप्रोच होगी तो सही मायने में जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाएगा, है ना। तो नव इन द इफ वी एनालिसिस द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी, तो बिफोर 1991 मीन्स बिफोर द एलपीजी रिफॉर्म्स, ब्यूरोक्रेसी जो है इंडिया में समहाउ वो क्या था, एक लाल बत्ती में चलना, गाड़ी में चलना, है ना, एक रोब झाड़ना, वो वाला एटीट्यूड था। बट नाउ इन द रिसेंट टाइम वी कैन से दैट रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी इज़ ऑल्सो इक्वल एज द सिविल सोसाइटीज़ एंड द कॉरपोरेट वर्ल्ड। तो अभी जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं मिल के काम कर रही है और एक अच्छी चीज़ है। अगर ऐसा नहीं होगा तो मैंने बोला ना कि वो कंट्री फिर डेवलप नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। लेकिन अभी हम थोड़ा समझें कि जो ये ब्यूरोक्रेसी भी है ये क्यों कहीं ना कहीं, कहाँ इसमें लूप होल्स हैं, व्हाट आर द वेरियस लूप होल और व्हाट आर द वेरियस नेगेटिव थिंग्स इन द फ्रंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। और हम इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि व्हाट आर द वेरियस चैलेंजेस रिलेटेड टू द ब्यूरोक्रेसी। तो उसमें सबसे पहला तो है वही कि जैसे फास्ट पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मीन्स यहाँ आपको एक चीज़ समझनी होगी कि नाउ द एंटायर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग, है ना। कंप्लीट जो दुनिया का जो सिनेरियो है, जो पूरा सिस्टम है वो बदल रहा है ना। एंटायर वर्ल्ड इज जस्ट गोइंग ऑन इन चेंजिंग, और इन इवन स्पेशली आफ्टर द कोविड टाइम। तो कोविड के बाद तो पूरा एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है ना। तो फास्ट पेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, रैपिडली एडवांसमेंट हो रहा है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का। इसके अलावा वेरियस थ्रेट बढ़ रहे हैं, साइबर थ्रेट, इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके अलावा जो एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे हो रही है, तो उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मैंने कहा साइबर क्राइम, अभी देख लो आप मीडिया में जो एक पूरा जो गलत रॉन्ग इन्फॉर्मेशन को कैसे लोग सर्कुलेट करते हैं। इसके अलावा जो कहीं ना कहीं सिविल सोसाइटीज़ जो हैं वो भी दुनिया में अच्छा काम कर रही हैं, न्यू स्किल की ज़रूरत पड़ रही है। कहने का मतलब अभी जो पूरा हम बात करें पूरी दुनिया में ये सब चेंजेस हो रहे हैं कि पीपल्स आर जनरली मोर अवेयर हो रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी अगर एडवांसमेंट हो रहा है तो उसके साथ न्यू थ्रेट भी आ रहे हैं। फिर हम सेम बात करें कि जो न्यू टूल्स ऑफ गवर्नेंस वो सब देखने को मिलता है। फास्ट पेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, रैपिड एडवांसमेंट हो रहा है। इसके अलावा इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट भी हमारे सामने नए नए उभर के आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला साइबर क्राइम। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। मतलब ये क्या है, ये सब चीज़ें हो रही हैं अब हमारे आसपास सोसाइटी में। तो यहाँ पे हमें इस बात को समझना होगा कि इन द लाइट ऑफ दीज चेंजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, द ब्यूरोक्रेसी मस्ट रिफॉर्म इटसेल्फ। तो जैसे न्यू पब्लिक सर्विसेज, न्यू गवर्नेंस और एक तरीके से रिफॉर्म, स्पेशली इंटरनल रिफॉर्म इन द ब्यूरोक्रेसी मस्ट बी नीडेड टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो हम वो तभी अचीव कर सकते हैं जब जो ये रोल है ब्यूरोक्रेसी का, ये और ज़्यादा हम इसमें इम्प्रूवमेंट करें, और ज़्यादा रोल्स जो है ब्यूरोक्रेसी का रोल वो ज़्यादा फ्रेंडली इन नेचर हो, ठीक है ना। तभी सही मायने में हम अपना जो ये अचीवमेंट है जो हमने पूरा, अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या था,
मतलब द चेंजिंग रोल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, कि कैसे अगर इस रोल को चेंज करके और समय में जो सिनेरियो हो रहा है, जो समय में दुनिया में जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको देखते हुए हमें अपने अंदर इन चीज़ों में भी रिफॉर्म करना होगा, तभी हम एक बेहतर सोसाइटी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये है पूरा चैप्टर। और जिसको नोट्स चाहिए तो वो मैंने आपको बताया, इस तरीके से आप क्रीम नोट्स भी बाई कर सकते हैं मुझे व्हाट्सएप या मेल करके। ठीक है, और जो भी फाइनेंशियली जो स्टेबल हैं, जो भी लोग इंडिपेंडेंट हैं और कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट भी कंट्रीब्यूट अगर आप करना चाहते हैं तो ज़रूर आप कंट्रीब्यूट करें इस चैनल को। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।